Good afternoon, everyone. I hope all are good. So, how was your unit test? Still, so many students has not sent the book of unit test, so send it as soon as possible. Today, our chapter number 8 is over. Explanation part is over. So, today I am going to give you an exercise which you have to write in your classwork book one time. Hard words you will write 2 times in your classwork book. Remaining exercise you will complete in your textbook as well as you will write 1 time in your classwork, ENV classwork. Write with a new page with a heading, date, everything, and everybody will write with a very neat handwriting. Okay? So first question is hard words. This hard words you will write 2 times in your ENV classwork. This hard words is of chapter number 8. This exercise is of chapter number 8 and you will write this in a classwork book. So hard words are first beautiful, B-A-U-T-I-F-U-L, beautiful. Second F-R-A-G-R-A-N-T, fragrant. O-D-O-U-R-L-E-S-S, odorless. P-R-O-D-U-C-I-N-G, producing. S-E-P-A-L, sepal. P-I-S-T-I-L, pistil. S-T-A-M-E-N, stamen. S-T-I-G-M-A, stigma. F-I-L-A-M-E-N-T, filament. A-N-T-H-E-R-S, anthers. C-A-M-P-U-S, campus. R-E-C-O-G-N-I-S-E, recognize. D-A-H-I-L-A-S, dahlias. T-U-L-I-P-S, tulips. S-U-R-R-O-U-N-D-I-N-G, surrounding. D-E-C-O-R-A-T-E, decorate. E-N-T-R-A-N-C-E, entrance. O-C-C-A-S-I-O-N, occasion. B-O-U-Q-U-E-T, bouquet. G-A-R-L-A-N-D-S, garlands. I-N-C-E-N-S-E, incense. S-T-I-C-K-S, sticks, incense sticks. P-E-R-F-U-M-E, perfume. C-A-L-E-N-D-U-L-A, calendula. O-I-N-T-M-E-N-T, ointment. So these are the hard words of chapter number 8 which you will write 2 times in your classwork book. And please all of you speak and write. You have to learn the hard words. These are the words which you have to learn. Okay? Now the next question is buzzwords. This also you will write in your classwork book 1 time. First buzzword is fragrant. What do you mean by fragrant? With a pleasant smell, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है ना कुछ भी चीज की, जैसे फ्लावर्स की, परफ्यूम्स की, कई बार कोई भी खाने की, तो उसको हम फ्रेग्रेंट कहते हैं. ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब विथ नो स्मेल. ऑर्डरलेस मतलब जिसकी कोई स्मेल ही नहीं होती, उसको हम ऑर्डरलेस कहते हैं. इंसेंस, a substance that creates a strong but pleasant smell when burned. अगर कुछ भी चीज अगर हम उसको जलाते हैं और उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल खुशबू आती है, उसको हम इंसेंस कहते हैं. जैसे कि इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, अगरबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल खुशबू आती है, उसको हम इंसेंस कहते हैं. एक्सट्रैक्ट, a substance that has been taken from a plant or from another substance. कई भी चीज के अंदर में से कुछ निकालना, फिर वो प्लांट हो या अर्थ हो, कई किसी के अंदर से अगर हम कुछ भी निकालते हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं.
Okay, so this hard words you will buzzwords you will write in your classwork book one time. Okay, now the next question. Now next question is choose the correct answer. This choose the correct answer also you will complete in your textbook of chapter 8 and then even you will write one time in your classwork book. Flowers grow from, फ्लावर किस में से ग्रो होते हैं? रूट्स, बर्ड्स के लीव्स. तो फ्लावर ग्रोज फ्रॉम बर्ड्स. फ्लावर्स डेवलप इनटू, फ्लावर्स क्या बन जाते हैं? स्किन, लीव्स और फ्रूट्स. फ्लावर में से क्या बन जाता है? फ्रूट्स. द डैश फ्लावर इज यूज्ड टू मेक शैम्पू. कौन से फ्लेवर में से हम फ्लावर में से हम शैम्पू बना सकते हैं? हिबिस्कस, डेजी, मेरीगोल्ड. तो हिबिस्कस. डैश फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट मतलब कुछ भी अगर लग जाए तो हम जो क्रीम लगाते हैं ना उसको हम ऑइंटमेंट कहते हैं. तो कौन से फ्लावर में से ऑइंटमेंट बनता है? टोमेटो, कैलेंड्यूला, डेजी. तो आंसर इज कैलेंड्यूला. नेक्स्ट, some people also eat gulkan with which is made from dash petals. हम गुलकन जो खाते हैं ना वो किसकी पेटल्स में से बनता है? जैस्मिन, लिली के रोज. द आंसर इज रोज. यस. So complete this also in your textbook and a classwork. Now the next question is fill in the blanks. This also you will write in your textbook of chapter 8 and then one time in your classwork book. Okay. Dash are the most beautiful parts of a plant. कौन सी plants की बहुत beautiful चीज होती है? तो answer is flowers. Flowers are the most beautiful parts of a plant. Plants which bear flowers are called flowering plants. Plants जो जिसमें flowers होते हैं वैसे plants को हम क्या कहते हैं? Flowering plants. We make rangoli and put torans on the entrances of our homes during festival and other special occasion. फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन में हम अपने एंट्रेंस, होम के जो एंट्रेंस पे वहां पे क्या करते हैं? तो वहां पे हम रंगोली बनाते हैं और हमारे डोर के ऊपर हम तोरन्स भी लगाते हैं, है ना. Flowers such as chamomile and jasmine are used to add flavors to the tea. कौन से फ्लावर्स हम टी में भी डाल सकते हैं फ्लेवर्स के लिए? तो कैमोमाइल एंड जैस्मिन. A person who sells flowers is known as a florist. जो लोग फ्लावर्स को बेचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट. ओके, आई होप आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भी समझ में आ गई होगी. तो दिस ऑल्सो कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक एंड राइट वन टाइम इन योर क्लास वर्क बुक. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. पहले मैं सारे मैच द फॉलोइंग बोल लेती हूँ फिर उसके आंसर्स बताती हूँ. द पिस्टल, पॉलन, जैस्मिन, फ्लावर मार्केट एंड रोडोडेंड्रॉन. ओके, और सामने है ए में येलो कलर सब्सटेंसेस इन फ्लावर्स, शरबत एंड सिरप्स, पार्ट ऑफ अ फ्लावर, परफ्यूम्स एंड इंसेंस स्टिक्स, मंडीज. सो अब जिसका आंसर सामने आता है वो हमें लिखना है. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया है. पिस्टल, पिस्टल का आंसर क्या है? सी. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, पिस्टल क्या है? एक पार्ट है फ्लावर का. पॉलन, पॉलन क्या होता है? ए, येलो कलर सब्सटेंस इन अ फ्लावर. अगर आपने फ्लावर ठीक से देखा हो ना तो जब वो ब्लूम करके खुल जाता है ना तो उसके अंदर येलो कलर के छोटे 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 होते हैं, उसको हम पॉलन कहते हैं. जैस्मिन, देन आंसर इज बी, परफ्यूम्स एंड इंसेंस स्टिक्स. जैस्मिन से क्या बनता है? परफ्यूम्स बनते हैं एंड इंसेंस स्टिक्स बनती है. फोर्थ, फ्लावर मार्केट. फ्लावर मार्केट का आंसर है ई. फ्लावर मार्केट को क्या कहते हैं? मंडीज. एंड फिफ्थ, रोडोडेंड्रॉन. रोडोडेंड्रॉन से क्या बनता है? बी, शरबत एंड सिरप्स. ओके, आई होप ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी. मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को. यहाँ पे है हार्ड वर्ड्स जो आपको 2 टाइम्स लिखने हैं. देन इट कम्स टू बज़वर्ड्स, देन चूज द करेक्ट आंसर, fill in the blanks and match the following.
So whichever exercises are there in your textbook, that you will complete in your textbook, and everything you will write one time in your classwork book, and then you will show it to me on a WhatsApp. प्लीज बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे अभी तक होमवर्क दिखाते नहीं है, तो प्लीज अपना होमवर्क कंप्लीट करो और मुझे प्लीज दिखा देना, ठीक है? एंड एवरीबडी विल राइट विथ अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ओके, चलो. और क्वेश्चन आंसर्स, वन वर्ड आंसर्स, वन सेंटेंस आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी, ठीक है? चलो, आई विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन, बाय बाय.